Hello everybody, myself Mahesh Talpada. We are here to learn chapter number 3, kinds of noun. It is of standard 6th, subject English grammar. Now in that previously we have seen lesson number 2. Now let us learn lesson number 3, kinds of noun. Noun is a parts of speech that we all know. There are 7 parts of speech. In that, we'll learn about noun first. Now, first of all, kinds of noun means how many types of nouns are there. So, first of all, common noun, proper noun, abstract noun, collective noun, and material noun. Now, let us learn about the first one, that is common noun. A common noun is a common name given to a person or thing of a same kind. For example, girl, hospital, cow, pencil. Particularly when we learn about common noun and proper noun, we know that noun is what? Noun is a name of a person, place, or thing. So those names can be divided into two parts, common and proper in general. So common noun is what? Common noun is a name that can be given to a same category of those things. So common noun, for example, boy. We can use the name boy for every small male child. Then girl we can use for every small female child. So common noun जो हम यूज़ कर सकते हैं सभी उस टाइप की कैटेगरी के लोगों या चीज़ों के लिए. You will understand more after learning proper noun, what is common and what is proper. A proper noun is a special name given to a person or thing. Proper noun is a special name given to a persons or things. It always begins with a capital letter, so it can be very helpful to understand and to identify if the noun is common or proper. Proper noun always starts with a capital letter. Look at the examples: Mohan, Chennai, Rover, Tuesday, Saturn. These all names are of proper noun. कॉमन नाउन हमने सीखा कि कॉमन नाउन में जो नाम होता है वो हम और भी उस सेम कैटेगरी के लोगों या चीज़ों या प्लेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल गार्डन, तो गार्डन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है. गार्डन्स कैन बी मैनी एंड वी कैन रिफ़र दैट प्लेस एज अ वन थिंग. सो गार्डन हुआ कॉमन नाउन. उसके बाद प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन वो है जो स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जांपल हम किसी भी बॉय या गर्ल का नाम बोलें तो वो होता है प्रॉपर नाउन. यहाँ पे मोहन, देन राधा, सीता, ये सारे हुए प्रॉपर नाउन. या उसके बाद द नेम्स ऑफ डिफरेंट सिटीज़ और विलेज या स्टेट या कंट्री, तो वो भी होता है प्रॉपर नाउन. जैसे कि चेन्नई, देन अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई, ये सारे नाम. रोवर, दैन ट्यूसडे, डेज ऑफ द वीक, दैन प्लैनेट्स. जो पर्टिकुलर नाम हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए वो होता है प्रॉपर नाउन. नाउ थर्ड, उसके बाद फोर्थ एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. An abstract noun is a common name given to qualities, feelings, actions, or states. Now the next type of noun, it is an abstract noun. Now abstract noun is what? The abstract noun is a noun that can be used to show the qualities. And which kind of qualities or actions? That can be slyness, beauty, movement एंड मैनी मोर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम क्वालिटीज़ या किसी काम के लिए हम यूज़ करते हैं. ही इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय. तो ब्रेव वी कैन नॉट सी बट वी कैन कम टू नो अबाउट दैट बॉयज़ एफर्ट्स टू डू समथिंग. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो ब्रेव, देन स्लाई, और वी कैन refer to quality that he is very she is very
shy in by nature. So that is also an example of abstract noun. He is very clever, he is very honest. तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो क्वालिटीज़ जो किसी बॉय गर्ल या और किसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ द नेक्स्ट इज collective noun. A collective noun is a group name given to a collection of persons or things. कलेक्टिव नाउन यानी एक ही कैटेगरी के आते हुए सारे इंसान या कोई भी चीज़ या कोई भी एनिमल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन. इट इज़ अ नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स और persons or any kind of other non-living or living things. For example, team, a team of players. तो जो सारे प्लेयर्स कोई भी गेम खेलते हो तो उससे हम एक नाउन यूज़ करते हैं टीम, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें. दैन फ्लोक ऑफ शिप्स, स्वम ऑफ बीज यानी कि बीज का जहाँ पे बहुत सारी बीज एक साथ होती है तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्म है स्वम. दैन हिप. तो ये जो सारे एग्जांपल्स है वो है कलेक्टिव नाउन. अ बंच ऑफ फ्लावर्स वी यूज़, और वो हम इजीली जानते भी हैं. ये एग्जांपल. बंडल ऑफ स्टिक्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स, ये भी एक एग्जांपल है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन जो कोई ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मटीरियल नाउन. अ मटीरियल नाउन इज़ अ नेम गिवन टू मटीरियल थिंग्स. कोई भी चीज़ अगर कोई मटीरियल से बना है तो वो होता है मटीरियल नाउन. विच इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल थिंग्स, substances or items of food or drink. For example, water, wheat, gold. These are the examples of material noun. Now let us see the exam exercise so that we can easily understand what is noun and what are the different types of nouns. First exercise, pick out the nouns from these sentences and write them in proper boxes. Here you can see sentences are given. Below that there are boxes in which we need to write down. First sentence, Lolo the tortoise moved slowly. So here there are two nouns. First of all, Lolo, Lolo, then the other tortoise. So these are the two nouns that I have underlined so that you can identify. क्योंकि tortoise भी किसी का नाम है, Lolo वो भी किसी चीज़ का नाम है. सो फर्स्ट फॉर दैट लेट अस सी नाउ विच टाइप ऑफ नाउन. लोलो एल कैपिटल है और वो एक पर्टिकुलर टॉर्टोइज का ही नाम है, तो वो होगा प्रॉपर नाउन. उसके बाद द टॉर्टोइज. टॉर्टोइज वी नो दैट कछुए को हम टॉर्टोइज कहते हैं, पर एक ही कछुआ नहीं होता, पूरी दुनिया में काफ़ी सारे कछुए, तो सभी के लिए हम वही नाम यूज़ करते हैं. कॉमनली वी यूज़ द नेम tortoise या turtle. So the tortoise is a common noun. I hope you have understood. Now second, Gandhiji always spoke the truth. Gandhiji always spoke the truth. So here I have underlined Gandhiji because it is a name of a particular legendary person, and truth वो भी एक noun है. Now let us identify the two types of nouns that I have underlined. Gandhiji, it starts with a capital letter, the spelling, and it is the name of a particular one person. So Gandhiji is a proper noun. And second word, truth, truth, truth. Truth we all know यानी कि सच्चाई. तो क्या हम सच्चाई को देख सकते हैं? No, but we can feel that he is a honest boy as he speak the truth all the time. तो truth जो हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, so that is why it is an abstract noun. Udaipur has many beautiful palaces. Udaipur, it is the name of a particular place. And palaces यानी कि महल. उदयपुर हैज़ मैनी ब्यूटीफुल पैलेसेस यानी कि उदयपुर में काफ़ी सुंदर महल है. महल एक नहीं है, उससे ज़्यादा है. सो इन दैट
उदयपुर इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, और वो पर्टिकुलर एक ही सिटी का नाम है, सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. देन पैलेसेस, पैलेस यानी महल, एंड इसी के लिए वो कॉमन नाउन है, क्योंकि सारे महलों के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में एक वर्ड पैलेसेस. अ बंच ऑफ एरोज केम सेलिंग बाय. अ बंच ऑफ एरोज, अ बंच, तो बंच एक वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं एक कलेक्शन के लिए, जैसे कि अ पैक ऑफ वुल्फ्स, यानी जो वुल्फ होता है अगर उनकी एक टोली या ग्रुप है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैक, PACK. तो वैसे ही बंच कलेक्टिव नाउन है. एरोज़ एक एरो के लिए यूज़ नहीं होता, जितने भी एरोज़ है उसके लिए एक ही वर्ड है एरो, तो वो हुआ कॉमन नाउन. ड्रिंक अप योर मिल्क सून, तो यहाँ पे ड्रिंक तो हमें पता है वो वर्ब है, तो वो नाउन नहीं है. देन मिल्क वो एक नाम है किसी मटेरियल का, तो लेट अस सी मिल्क विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अ कॉमन नाउन. बीरबल वॉज नोन फॉर हिज विजडम. बीरबल इज बीरबल वॉज नोन फॉर हिज विजडम. बीरबल किसी व्यक्ति का नाम है, तो प्रॉपर नाउन. विजडम एक क्वालिटी है, यानी कि इंटेलिजेंस, कैपेसिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट इज़ गुड और बैड, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल विजडम. तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सो लेट अस सी द आंसर हियर. कॉमन नाउन में टॉर्टोइज, पैलेसेस, एरोज, मिल्क. प्रॉपर नाउन लोलो, गांधी जी, उदयपुर, बीरबल. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रूथ, विजडम. अगर ऑनेस्ट होता तो वो भी इस कैटेगरी में आता. कलेक्टिव नाउन एक ही है, बंच ऑफ एरोज. बंच हुआ कलेक्टिव नाउन. वैसे ही पैक्स, वर्म, ये भी एग्जांपल्स हैं. सो आई होप इट इज़ क्लियर इन योर माइंड काइंड्स ऑफ nouns. Now let us see the next one, that is count and non-count nouns. Some nouns name things can be counted. They are known as countable or count nouns. 6 apples, an eagle, 3 plates, a few bottles, many buildings. That can be in the category of countable noun or count noun, because we can easily count. Generally common nouns are and collective nouns are countable. कॉमन नाउन जो होते हैं, जो हमने सीखा कि एक नेम जो सारी कैटेगरी के लोग या चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे बॉय गर्ल, तो वो हुआ कॉमन नाउन. कलेक्टिव नाउन जो हमने अभी सीखा वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो दे आर काउंटेबल. वी नीड टू आइडेंटिफाई इट इज़ कॉमन नाउन और collective noun. Now second, some nouns name things that cannot be counted. They are known as uncountable or non-count nouns. A little milk, milk we cannot count because it is in the liquid form. Then some money, enough food, lots of furniture, plenty of air. तो यहाँ पे जो भी रेड कलर के वर्ड्स हैं, मिल्क, मनी, फूड, फर्नीचर, एयर, दैट कैन नॉट बी काउंटेड. दैट इज़ वाई दे आर इन नॉन काउंट नाउन कैटेगरी और अनकाउंटेबल नाउन्स कैटेगरी. जनरली प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जनरली प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर नेम होता है किसी भी व्यक्ति या चीज़ या कोई प्लेस के लिए, वो होता है प्रॉपर नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम फील नहीं कर सकते बट वी कैन, जो हम देख नहीं सकते पर जो हम फील कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये जो दो टाइप ऑफ नाउन है, प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट, वो होते हैं अनकाउंटेबल. सो नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज. तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ काउंटेबल एंड व्हाट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. एंड सर्कल द नाउन्स in the grid below and write them in the appropriate form. A box is given where lots of alphabets are written. We need to make a box where it gives particular nouns, and then we need to identify it is countable or not.
So that I have done. So let us discuss. First of all, countable noun. Countable noun, fleet. Fleet क्या है? It is a collective noun. And that's why we have kept it in countable form. Uncountable, name of a particular city, जो है proper noun, वो होता है uncountable noun के कॉलम में. Second one is cheetah, that we can count how many cheetahs are there in the forest or cage. तो easily वो हम count कर सकते हैं. Love, that cannot be counted, that can be experienced or felt. Army, तो उसका प्लूरल हो सकता है. आर्मी या चीताज, तो उसका प्लूरल हो सकता है. दैट इज़ वाई दे आर इन द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल. जस्टिस, अनकाउंटेबल. इंडिया, उसका प्लूरल नहीं हो सकता. भले ही वी कैन काउंट इंडिया एज ओनली वन कंट्री, बट वी कैन नॉट टर्न इन टू प्लूरल, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अनकाउंटेबल. पेन, दैट कैन बी काउंटेबल. पेन, पेन्स. Then float, that cannot be counted, so that is why it is uncountable. Vase, Jupiter, जैसे इंडिया था वो काउंट तो हो सकता है. जुपिटर एक प्लैनेट जो हम जानते हैं काउंट हो सकता है, बट उसका प्लूरल नहीं हो सकता. और ऊपर हमने एक रूल सीखा है कि अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ सकता है. तो प्रॉपर नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो अनकाउंटेबल ही होते हैं. तो यहाँ पे जुपिटर, ताजमहल, कॉटन, सिल्क, मिल्क, वो सारे अनकाउंटेबल में ही आएंगे, बिकॉज वी कैन नॉट काउंट द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क और सिल्क और कॉटन. वैसे ही टस्क, जो हाथी के आगे, मुंह के आगे उसके जो टस्क यानी कि टीथ होते हैं वो. स्वम, गैंग, मैन, MAN, उसका प्लूरल मैन. यहाँ अगर आप ग्रिड टेबल में देखोगे तो MAN है. बाय मिस्टेक आई हैव रिटन MEN, सो दैट यू शुड टेक केयर ऑफ. वेस्ट तो हमने डिस्कस किया. सो दिस इज़ व्हाट वी लर्न इन दिस टुडेज टॉपिक, काइंड्स ऑफ नाउन, एंड इन दैट फर्स्ट वन इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल nouns. So I hope it is clear in your mind. So thank you very much for being with us, and do stay tuned for the more videos. Thank you.